Hi everyone, welcome to the Indian Contract Act, like the class of the Contract Act. So, in the latest class, we have studied the nature of the contract, the what do we understand by the agreement, how the contract is being completed, what are the basic criteria for the fulfillment of the contract. We have already discussed about these features. Okay. In today's class, we are going to have a recap upon those. And as discussed in the last class, we are going to continue the unfinished sections like the what do you understand by the fraud, misrepresentation, like all these things we are going to study in today's class. Okay. And as we have understood in the last class, we know that like when we have understood that what do we understand by proposal. When I am proposing someone or something to do certain kind of act or to be restrained to do from certain kind of act, that is a proposal. We have understood कि अगर मैंने आपको कोई काम करने के लिए प्रपोजल दे रही हूँ, इसका मतलब either I am inviting you to do that work और I am denying you कि नहीं ऐसा मत कीजिए. अगर मैं आपको बोलता हूँ कि प्लीज ऐसा कर दीजिए, नहीं तो प्लीज ऐसा मत कीजिए. So here there are two concepts. Either I am inviting you to do that act or I am denying you to do that act. Okay. So this is called a proposal, and when a proposal is associated with the acceptance, जब मैं कोई चीज आपको propose कर रही हूँ and you are accepting my proposal when associated with the acceptance, agree to do that act, that becomes a promise. For example, I have proposed you कि चलिए हम बाहर चलते हैं, चलिए हम ये जमीन खरीदते हैं, या फिर डू यू वांट टू बाय माय हाउस. कोई भी चीज का प्रपोजल दे रही हूँ जहाँ पे मैं आपको कोई चीज का ऑफर दे रही हूँ, एंड व्हेन यू आर एक्सेप्टिंग दैट ऑफर, व्हेन यू आर एक्सेप्टिंग दैट प्रपोजल, दैट बिकम्स a promise. And a promise when associated with the consideration, that becomes an agreement. And when an agreement is legally enforceable, when an agreement is enforceable by the court of law, that agreement becomes a contract. तो ये सारी चीजें ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं, हाँ या ना, कर चुके हैं. And we have also understood like the acceptance of the proposal, the revocation of the proposal and revocation of the acceptance. ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, right? So coming to the next part, yeah, we have also understood that what contracts are valid and what contracts are void in nature. Under that circumstances, I have made you understand that if any contract is legally enforceable by the law, that contract is called a valid contract. Okay. So when you will ask me like, ma'am, what do you understand by the legal enforcement of the contract? To make an agreement as a valid contract, कोई एग्रीमेंट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट करने के लिए देयर आर द नीड ऑफ सर्टेन क्राइटेरियाज which need to be fulfilled. So what are those? As we have discussed in the last class, the first criteria, there must be the presence of more than one person. Like if I am one person, I cannot do an agreement with myself. मैं खुद के साथ कोई एग्रीमेंट साइन नहीं कर सकती हूँ, है ना. If I am doing an agreement with any other person, there must be the presence of more than one person to do certain kind of agreement. कोई भी तरह का एग्रीमेंट करने के लिए एक से ज्यादा लोगों का प्रेजेंस रहना बहुत जरूरी है. पहला चीज हमने समझा था. दूसरा चीज क्या समझा था? द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट or the parties to the agreement, they must have the competency to enter into the contract. जो लोगों ने contract, they must have the competency to do the contract. That means they must have the sound mind, they must have the good thoughts, or they must have the proper intention to enter into the contract. उनका दिमागी हालात सही हो. दूसरा चीज अंडर सेक्शन 11 हु आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, इसके अंडर हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? पहले उनका उम्र 18 साल से ज्यादा होना चाहिए. व्हेन ए पर्सन इज ए माइनर, 18 साल से अगर किसी का उम्र कम है, दैट पर्सन इज नॉट लीगली एंटाइटल्ड टू डू एनी काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. बिकॉज अगर 18 साल से कम किसी का उम्र होता है, दैट पर्सन इज कंसिडर्ड एज ए माइनर, एंड ए माइनर
कैन नॉट एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। किसी भी तरह का वैलिड कॉन्ट्रैक्ट करने एक मेजर होना 18 साल से ज्यादा होना हमने डिस्कस किया था। तो पहला क्राइटेरिया हमने क्या, टू व्हेन द पार्टीज बिकम द कॉम्पिटेंट, पहला 18 साल से ज्यादा, द पार्टी हु आर द पार्टीज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट दे मस्ट हैव सेन इन नेचर, उनका दिमागी हालात सही होना, दे मस्ट हैव ए स्टेबल माइंड टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, उनका मेंटल स्टेट बहुत सही होना जरूरी है टू टेक एनी काइंड ऑफ द डिसीजन। सेकेंडली, थर्ड थिंग, हम एंड नॉट डिस्क्वालिफाइड by any law to enter into the contract. For example, I am an Indian and you are a foreigner, and by the certain Indian laws you are restricted to enter into certain kind of the contract. For example, मान लीजिए I am a normal person who wants to buy certain kind of drugs which is illegal in India, but that drugs and that medicines are only allowed to buy when someone is from the government official or for the forensic department or from the medicine department. ऐसा देयर आर सम स्पेसिफिक अथॉरिटीज जिनको वो ड्रग्स खरीदने का हक है। बट इफ आई एम ए नॉर्मल सिटीजन ऑफ इंडिया, आई एम ए जस्ट ए लेक्चरर एंड आई वांट टू बाय दैट ड्रग, am I legally authenticate or am I legally eligible to enter into that contract? The answer is no. Even if I am having all kind of eligibility, the nature of the contract I am entering into, that will not be a valid contract, because the object of the contract, I am not legally entitled to buy that object. So there must be the competency of the parties according to section 11 of the Indian Contract Act to enter into the contract. Parties का competency के बाद आ गया, उसका बाद क्या आता है, lawful consideration and lawful object. So when you are asking me about the lawful consideration, I have made you understand कि अगर मैं contract के बदले आपको किसी भी तरह का consideration दे रही हूँ, मान लीजिए in exchange of a land, I am paying you 10 lakh of the rupees, that must be lawful. जो consideration हम एक दूसरे को दे रहे हैं और the consideration amount I am paying you, or in return of my amount or my money, the land you are giving me, that consideration should be lawful and proper. And the most important and the last point we have discussed, that is the presence of the lawful object. The lawful object means the object upon which the contract is getting signed, that object should be valid and lawful. Got it? So these are the certain criteria we have discussed for the agreement or the happening of a valid contract. And under this, we have also discussed about one more thing. To make validation up to a certain contract, there must be the presence of the free consent of the parties. So if you ask me, what do we understand by the free consent of the parties? Free consent means when there is the absence of any kind of the force or misrepresentation or miscommunication to enter into the contract. अगर मैं कोई भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रही हूँ, दैट मस्ट बी आउट ऑफ फोर्स, दैट मस्ट बी विद द फ्री कंसेंट, with happiness, with my own interest, I am entering into that contract, and then only that contract is called to be signed with the free consent. So as coming to the part of the free consent, we have discussed under section 14 of the Indian Contract Act that there are certain points which defines what do we understand by the free consent. Under the free consent हमने ये डिस्कस किया था कि if a contract is not due to or caused by any kind of coercion under section 15, undue influence under section 16, coercion, undue influence, fraud, misrepresentation, mistake. Coercion, undue influence, fraud, misrepresentation and mistake. If a contract is not caused by any of above circumstances, then the contract is called a valid or authenticate contract. Got it? So when I'm talking about the coercion, right? So what do you understand by the coercion? Coercion means kind of influencing or forcing someone to do certain kind of act by threatening someone. Just take an example, as we have also discussed about the coercion, like
The coercion is a kind of act by threatening someone via doing any kind of act which activity is illegal according to the Indian Penal Code. Okay, मैं ऐसा कुछ काम कर रही हूँ जो कि अकॉर्डिंग टू द इंडियन पेनल कोड एक क्राइम माना जाता है, एंड बाय डूइंग दैट एक्ट आई एम फोर्सिंग यू, आई एम इन्फ्लुएंसिंग यू, मैं आपको जबरदस्ती मजबूर कर रही हूँ टू डू सर्टन काइंड ऑफ एग्रीमेंट विथ मी, एंड देन यू आर गिविंग मी योर कंसेंट ड्यू टू दैट फोर्स, ड्यू टू दैट मजबूरी, और ड्यू टू दैट काइंड ऑफ लाइक हेल्पलेसनेस, जहाँ पे आप कुछ कर नहीं सकते, आप मजबूर होके मेरे को कुछ चीज में अपना कंसेंट दे रहे हो, यू आर एग्रीइंग टू डू समथिंग, दैट इज कॉल्ड द कोयर्सन। जैसे कि मैंने आपका कोई करीबी लोग मान लीजिए, या फिर मान लीजिए आई एम थ्रेटनिंग यू टू डिस्ट्रॉय योर प्रॉपर्टी और डिस्ट्रॉय योर लैंड, और आई एम डूइंग एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी व्हिच इज इलीगल इन नेचर। फॉर एग्जाम्पल योर किड, आइदर दो तरीके का होता है, लाइक आइदर आई एम डूइंग दैट काइंड ऑफ वर्क, और आई एम थ्रेटनिंग यू, और आई एम हरासिंग यू कि अगर आपने एग्रीमेंट नहीं किया तो मैंने ऐसा कुछ कर दूं। देयर आर टू सर्कमस्टांसेस आई एम मेकिंग यू अंडरस्टैंड। मान लीजिए आपका बेटी स्कूल में है, मतलब सुबह आपका बेटी स्कूल गई हुई है, ओके, दैट योर डॉटर इज अबाउट टू कम बैक फ्रॉम द स्कूल, वो स्कूल से अकेले बाय द साइकिल और बाय द फुटपाथ, मतलब बाय द चल के पैदल वो घर वापस आती है, ओके। तो मैं आपको उसका जब स्कूल छुट्टी होने का टाइम होता है ना, तभी मैं आपको कॉल करती हूँ, और अगर अगर आपने अभी मुझे इमीडिएटली 10 मिनट के अंदर ये कॉन्ट्रैक्ट पे साइन नहीं करते हैं, तो आपकी बेटी 10 मिनट के अंदर जो वो घर नहीं पहुंच पाएगी। आई एम गोइंग टू किडनैप योर डॉटर and I am going to kill her if you are not agreeing to sign this kind of contract। तो यहाँ पे क्या होता है, सिचुएशन मेरा हाथ से निकल चुका है, मेरे को पता है कि अगर मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट अभी साइन नहीं कर सकती, माई डॉटर इज अबाउट टू कम बैक होम, मेरी बेटी अभी घर आने वाली है, तो हो सकता है यू आर गोइंग टू डू एनी काइंड ऑफ हार्म टू हर, आप उसको किसी भी तरह का नुकसान पहुंचा सकते, यू माइट किल हर, यू माइट किडनैप हर, यू माइट हरास हर, आप उनको, मेरी बेटी को किसी भी तरह का हरासमेंट या किसी भी तरह पहुंचा सकते हैं। सो देयर इज ए थ्रेट, देयर इज ए फियर, देयर इज एन एंजाइटी इन माई माइंड, जहां पे मैं मजबूर हो जाती हूँ टू साइन दैट कॉन्ट्रैक्ट, नहीं तो मेरे फैमिली के कोई मेंबर को किसी भी तरह का नुकसान अंदर है। दूसरा सिचुएशन मान लीजिए आई हैव किडनैप योर डॉटर, एंड मैं वीडियो कॉल पे आपको अपनी बेटी को किडनैप होते हुए दिखा रही हूँ एंड बता रही हूँ कि अगर आप ये कॉन्ट्रैक्ट अभी साइन नहीं कर, देन आई एम गोइंग टू किल हर। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक स्टेप ले चुकी हूँ, आई हैव अबैंडन्ड हर, आई हैव ऑलरेडी किडनैप्ड हर। किडनैप करने के बाद मैं आपको थ्रेट कर रही हूँ, डरा रही हूँ कि आप साइन कीजिए, नहीं तो मैं आपके बेटी के साथ ऐसा गलत करने वाली हूँ। सो हियर द काइंड ऑफ एक्टिविटी आई एम डूइंग दैट इज टोटली इलीगल एंड टोटली अनऑथेंटिक इन नेचर, दैट इज इलीगल अंडर द इंडियन पेनल कोड, है ना। मैं यहाँ पे आपको बेटी को मारने का धमकी देके आपसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा रही हूँ। ये तो गया पर्सन के बाद। अब आइए प्रॉपर्टी पे। मान लीजिए पे घर है, लाइक यू आर हैविंग 2 हाउसेस एंड आई एम सडनली कॉलिंग यू एंड बता रही हूँ कि अगर आप अभी ये कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर रहे तो आई एम गोइंग टू पुट फायर एट योर सेकेंड होम। आपका जो दूसरा वाला घर है, मैं वहां पे आग लगा दूंगी, वहां पे जो कोई भी है उनको मार दूंगी अगर आप मेरा कॉन्ट्रैक्ट पे अभी साइन नहीं कर। तो दिस काइंड ऑफ एक्टिविटी जो कुछ भी मैं कर रही हूँ, वहां पे आप अगर मेरे साथ कोई एग्रीमेंट या कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं, आर यू डूइंग दैट विथ योर फ्री कंसेंट? आप क्या अपने दिल से खुशी खुशी से वो कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर रहे हैं? द आंसर इज नो। You are agreeing to do that kind of contract with the force, with the coercion। आपको डर लग रहा है कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करेंगे देन आई एम गोइंग टू हर्ट यू। तो इसी डर से आप वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हैं। सो दैट काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वैलिड इन नेचर and that agreement is called as the void agreement when it is given without the free consent of the parties।
जहाँ पे पार्टीज का फ्री कंसेंट नहीं है टू एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट, एंड इन दैट स्टेट whatever contract is being signed, that contract is called as void ab initio, या फिर उसी को void माना जाता है। हो गया हमारा। करते हैं टॉकिंग अबाउट द ऑनड्यू इन्फ्लुएंस। ऑनड्यू इन्फ्लुएंस मीन्स व्हेन a party having the dominant position upon the another parties, and the parties which is having the dominant position are just 1 second, and the party which is having the dominant position upon the another party, that party is putting undue influence upon the another party कि अगर आप ऐसा कर दोगे आपको ऐसा होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए देयर आर टू ब्रदर्स, ओके, बड़े भाई और छोटे भाई। तो ऑब्वियस बात है कि बहुत मानता है बड़ा भाई को, मतलब बहुत रिस्पेक्ट करता है, एंड दे आर हैविंग ए वेरी गुड बॉन्ड। तो टेकिंग द बेनिफिट ऑफ दैट, द एल्डर ब्रदर, उसका बड़ा भाई जो है, ही टेक्स बेनिफिट ऑफ द सिचुएशन, एंड वो क्या कर रहा है, छोटा भाई को उसका रहा है कि आपका प्रॉपर्टी है, वो सारा प्रॉपर्टी मेरे नाम पे कर दो, अगर तुम कर दोगे तो तुम्हारा ऐसा होगा वैसा होगा, किसी भी तरह का लालच दे रहा है उसको, है ना। मान लीजिए आई एम योर टीचर, ओके, एंड इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस व्हाट आई एम डूइंग, आई एम इन्फ्लुएंसिंग यू, आई एम ब्रेन वॉशिंग यू, मैं आपका दिमाग को कंट्रोल कर रही हूँ, एंड आई एम इन्फ्लुएंसिंग यू कि आप ऐसा करिए। दूसरा सिचुएशन मान लीजिए, जैसे कि देयर आर टू फ्रेंड्स, ओके, दो बहन है, दो भाई है, दो दोस्त है, जहाँ पे एक का दूसरे के ऊपर बहुत ज्यादा ही इन्फ्लुएंस, जहाँ पे एक दूसरे का बात बहुत ज्यादा ही सुनने लग जाता है। इफ वी आर टू बेस्ट फ्रेंड्स, तो मेरा दोस्त रहेगा, ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू ट्रस्ट हर, ऑब्वियसली मैं ये चाहूंगी कि मेरा दोस्त जो भी बोल रहा है वो सच बोल रहा है, वो सही बोल रहा है। आई एम ट्रस्टिंग हर, आई एम लिसनिंग टू हर, आई एम रेस्पेक्टिंग हर वर्ड्स, यस और नो। एंड इन दैट सर्कमस्टांसेस, अगर मैं ये देखती हूँ कि मेरे दोस्त मेरे को कोई भी गलत चीज के लिए इन्फ्लुएंस कर रहा है, एंड दैट इज ट्रू फॉर हर पर्सनल बेनिफिट, देन that is called an agreement due to undue influence. Okay, yeah, there are two circumstances over here. पहला चीज ऐसा होता है, हाँ, दूसरा चीज क्या होता है, मास्टर सर्वेंट का रिलेशन भी आप ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम योर सीनियर अथॉरिटी, आई एम योर मास्टर, मैं आपको यहाँ पे इन्फ्लुएंस कर रही हूँ कि अगर आप अपना घर मेरे नाम पे कर रहे हैं, देन आई एम गोइंग टू गिव यू ए गुड प्रमोशन। तो यहाँ पे क्या होता है, मैं आपको लालच दे रही हूँ, आई एम जस्ट पुटिंग सम ऑफर इन फ्रंट ऑफ यू कि अगर आप ऐसा कर, तो हियर ड्यू टू द अनड्यू इन्फ्लुएंस यू आर मेकिंग योर होम विथ माय नेम। सो यहाँ पे मेरा जो कंसेंट आ रहा है घर बेचने के लिए, इज दैट कंसेंट ए वैलिड कंसेंट? The answer is no, because that is not a free consent. That consent is being caused by the influence of my master, by my boss. उसने कि अगर आपने अपना घर बेचोगे तो मैं आपको प्रमोशन दे दूंगा। सो इसी प्रमोशन के लालच पे मैं अपना घर बेच रही हूँ। सो इफ द सर्कमस्टांसेस इज लाइक दिस, घर बेचने का जो एक्टिविटी है दैट इज नॉट वैलिड इन नेचर, बिकॉज दैट इज नॉट ड्यू टू माई फ्री कंसेंट। दूसरा चीज क्या है, फॉर एग्जाम्पल, आई एम ए मेंटली अनस्टेबल पर्सन, जिसका दिमागी हालत सही नहीं है, एंड यू आर ए पर्सन जिसका दिमागी हालत बहुत सही है, एंड देयर आर, यू मस्ट नो, लाइक देयर आर सर्टेन काइंड ऑफ पीपल जो कि पागल तो नहीं होते, बट लाइक उनको सही गलत, मतलब कुछ चीजों का आधा ज्यादा समझ नहीं आता है, राइट। सो देयर आर सर्टेन काइंड ऑफ पीपल जो ऐसे भी एग्जिस्ट करते हैं। सो इन दैट सर्कमस्टांसेस, इफ ए पर्सन इज मेंटली अनस्टेबल, मेंटली हालत सही नहीं है, एंड आई एम इन्फ्लुएंसिंग दैट पर्सन कि आप अपना घर मेरे नाम पे कर दो, जमीन मेरे नाम पे कर दो, या फिर देयर इज ए ओल्ड वुमन जिसका उम्र हो रहा है, उसको उनको कोई चीज का समझ नहीं आ रहा है, आई एम गोइंग टू दैट ओल्ड पर्सन एंड टेलिंग दैट ओल्ड लेडी कि आप अपना घर, और आई एम गोइंग टू टेक केयर ऑफ यू, एंड आई एम गोइंग टू फीड यू फॉर रेस्ट ऑफ योर लाइफ। पे क्या होता है ना, दैट लेडी इज नॉट एबल टू टेक एनी ऑफ हर डिसीजन बाय हरसेल्फ, उनको अपना डिसीजन लेने का कोई भी कैपेसिटी नहीं है। इफ ए पर्सन इज मेंटली अनस्टेबल एंड एनी काइंड ऑफ डिसीजन दैट पर्सन इज टेकिंग ड्यू टू अनड्यू इन्फ्लुएंस, then that influence is called
invalid in nature, and that contract is called as an invalid contract itself. Got it? So I hope we have understood in detail about the coercion and undue influence. And from the next part onwards, we are going to continue in the next class. This is all for today. And if you are having any kind of doubt, you can just ask me. Okay, thank you.